Assalamualaikum and good morning, dear students. It's your social studies class, and today in this class we are going to start our written work of lesson number one. Lesson number one: globe and name skills. So get ready for the written work. Keep in mind one thing that you will do all the written work in rough register or rough notebook only. Get ready, take out your stationery, open your notebook, prepare the page, draw proper margin line with one finger space and write on the top social studies, today's date and CW. Lesson number, in the very first line, write lesson number one. In the next line, you will write the name of lesson one, globe and map skills. But do neat and tidy and write it in capital right, lesson one. The next line, write name and globe skills. Globe and name skills. You can take screenshots. स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हैं, तो अगर कुछ मिस हो जाए तो फिर उसमें कंप्लीट कर सकते हैं. लेसन नंबर वन ऑफ टाइम हेडिंग दे दी कैपिटल में, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में राइट करें शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चन के सामने जिस तरह आप लोग फोर्थ में करते थे राइट कर ली 1 to 3 मींस कि हम इस लेसन में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस राइट करेंगे. In the next line write long questions and then give number 5, 1 to 5 long questions we will do in this lesson. Then choose the correct answer. We will write 5 MCQs and then number 4 match the column. 5 match the column we will do in this lesson. Get ready for the short questions. Prepare the next page. After the outlines, you match the column, draw proper finishing line, double finishing line neatly. Prepare the next page. Fill the top of the page and draw proper margin line. In the very first line, write topic in capital. Topic. In the next line, give heading of short questions in capital. Short question number 1. In the next line, after short question heading, leave line and then give heading of short question number 1 neatly. And in the next line, write the question 1. What make a grid on a map? के मैप पर ये ग्रिड किस चीज से बनता है? आप लोग देखिए लाइन्स बने हुए होते हैं टॉप टू बॉटम एंड ईस्ट टू वेस्ट, तो ये इसको हम ग्रिड कहते हैं. ग्रिड जाल, जो एक जाल सा बना होता है, तो ये क्या बनाते हैं? सो राइट द क्वेश्चन व्हाट मेक अ ग्रिड ऑन अ मैप. देन आफ्टर दिस लीव लाइन and then give heading of answer in the next time as you will do as you was doing in class 3. the previous class आप लोग जिस तरह करते थे उसी तरह हेडिंग दे दी और नेक्स्ट लाइन में राइटिंग स्टार्ट कर ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से राइटिंग करेंगे. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मेक ग्रिड ऑन अ ग्लोब. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो कि वो होते हैं टॉप टू बॉटम जो लाइंस होते हैं, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो ईस्ट टू वेस्ट होते हैं, तो इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. ये लोग वे क्या बनाते हैं? एक ग्रिड, एक जाल बनाता है. दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ आंसर. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मेक ग्रिड ऑन अ ग्लोब. Sorry, one mistake I have done in the question. Make correction of this. What make grid on a globe? ये मैप को इरेज करके इसकी जगह आप लोग राइट कर ले globe. What make a grid on a globe? Then after this give heading of answer and write meridians of longitude and parallels of latitude make grid on a globe. After this you will draw half finishing line. शाबाश, half finishing line draw कर ली और फिर question number 2 heading दे दी. Question number 2, short question number 2 is which is the largest continent in the world? हमने लेक्चर में पढ़ा था ना कि 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बरआज़म कौन सा है? Which is the largest continent in the world? Right, after writing the question, leave one line and in the next line give heading of answer. After answer, in the next line write Asia is the largest continent in the world. हमने पढ़ा था ना कि सारे बरआज़मों में
एशिया जो है सबसे बड़ा बर आज़म है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। आफ्टर दिस ऑल्सो ड्रॉ हाफ फिनिशिंग लाइन। जब हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं होते तो हम हाफ फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर जब वो होगा तो हम एंड में फुल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। बट कीप वन थिंग इन माइंड, very neat and tidy handwriting. There should be no spell mistake in your written work. Then write neatly short question number 3. Give heading of short question 3, and in the next line write which is the largest ocean in the world. दुनिया में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? हमने पढ़ा था ना कि 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशंस है। ओशंस क्या? large mass of water, large area of water between the continents, तो उसको ओशन कहते हैं। 5 ओशंस है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है which is the largest ocean in the world। क्वेश्चन राइट करने के बाद लाइन छोड़ के आंसर हेडिंग दे दे और नेक्स्ट लाइन में राइट द आंसर which is Pacific Ocean is the largest ocean in the world। Pacific ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। मैंने आप लोग को मैप में भी दिखाया था, ग्लोब पर दिखाया था कि पैसिफिक जो है ये नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है और ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसको कहते हैं, राइट द आंसर नीटली, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आफ्टर दिस ड्रॉ फुल फिनिशिंग लाइन। हमारी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इसके साथ फिनिश हो गए। अब आप लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स लिया करें। अगर आपसे कुछ मिस हो जाए तो काइंडली फिर इसके कंप्लीट कर ले बाद में, लेकिन आप सब ये काम जो है ये रफ नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट पेज रेडी कर ले लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इन द वेरी फर्स्ट लाइन राइट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस। कैपिटल गिव हेडिंग ऑफ टॉपिक। इन द नेक्स्ट लाइन गिव हेडिंग ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, देन लीव लाइन एंड इन द नेक्स्ट लाइन give heading of question number 1. The question 1 write करे what a globe and a map are and the difference between them। कि ग्लोब और मैप क्या है और उनमें क्या फर्क है। हमने पढ़ा ना ग्लोब और मैप के बारे में। So the question is what a globe and a map are and the difference between them। After writing the question, give heading of answer, and after answer leave line, and then in the next line give heading of globe in capital। हम हमेशा हेडिंग जो है वो कैपिटल में देते हैं। So underline the heading neatly, double underline it, and then in the next line start writing globe is a 3-dimensional scale model of the earth। Globe is a 3-dimensional scale model of the earth which represent the shape of the earth। एक ग्लोब जो है ये एक मॉडल है अर्थ का जो कि अर्थ के शेप को रिप्रेजेंट करता है। So write globe is a 3-dimensional scale model of the earth which represent the shape of the earth। After this leave line and in the next line give heading of map in capital, underline the heading, and then in the next line write map is a flat drawing made to show an area of the earth। हमने पढ़ा था ना कि ग्लोब जो है ये एक मॉडल है, जबकि मैप जो है ये एक ड्राइंग है जो हम किसी पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी जगह को दिखाने के लिए। मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग made to show an area of the earth। After this draw हाफ फिनिशिंग लाइन, क्योंकि हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आप बस इतना रिटर्न वर्क काफी है। इसके बाद आप लोग होमवर्क नोट कर लें अपने साथ। सोशल स्टडीज होमवर्क है लर्न शॉर्ट क्वेश्चन 1 ऑफ लेसन नंबर 1। अभी जो मैंने आप लोगों को राइट करवा दिया, जो लिखा आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, उसको अच्छी तरह से लर्न करके रिटन प्रैक्टिस कर ले। 2 टाइम्स रिटन प्रैक्टिस कर ले, स्पेलिंग सब कुछ राइट कर ले। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? व्हाट मेक अ ग्रिड ऑन अ ग्लोब। आंसर इसका है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मेक ग्रिड ऑन अ ग्लोब।
ये अच्छी तरह से लर्न करके इसको राइट कर ले। क्लियर? Is there any problem, any difficulty? You can ask the question. मैं दोबारा आप लोगों को करवा रही हूँ, अगर आप लोगों से कुछ मिस हुआ है तो काइंडली दोबारा वो राइट कर ले, नोट डाउन कर ले। हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट की थी, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस राइट कर ली और साथ में 1 लॉन्ग क्वेश्चन राइट कर लिया। सो दोबारा आप लोग देख ली, शॉर्ट क्वेश्चंस टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चंस हेडिंग सब ने दिया है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 सब ने लिखा है व्हाट मेक अ ग्रिड ऑन अ ग्लोब। मैंने आप लोग को बता दिया कि यहाँ ये ग्लोब है, समझ आ रही है? ये वेब की जगह आप लोग ग्लोब राइट कर ले। इसके बाद आप लोग आंसर हेडिंग दिया है सबने, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, MERIDIANS, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल होता है। ऑफ लैटिट्यूड में ग्रिड ऑन अ ग्लोब। हाँ, आप लोग जो है एक स्टूडेंट पूछ रही है कि हम 4 लाइन्स वाली जो राइटिंग करेंगे, आप लोग क्लास 4th में है तो आप ये 4 लाइन वाली रफ नोटबुक खरीद लें और उसमें आप लोग प्रॉपर लाइन्स में राइटिंग करेंगे। 1 लाइन वाली नहीं, पेंसिल से करेंगे और 4 लाइन वाली इंग्लिश नोटबुक अपने लिए ले लें, उसमें आप लोग रिटन वर्क करेंगे सारा, सोशल स्टडीज में भी, जनरल साइंस में भी, इंग्लिश में भी। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें सब। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर किसी ने राइट नहीं किया तो राइट कर ले। Which is the largest continent in the world? कॉन्टिनेंट कौन सा सबसे बड़ा बलियाज़म है? मैंने आप लोग को बताया था कि कॉन्टिनेंट क्या है, ड्राई मास, लैंड मास ऑफ द अर्थ, जमीन का जो खुश्की वाला इलाका है उसको हम सारे को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इन सब में जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा बलियाज़म कौन सा है? तो आंसर हमने राइट किया है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया जिसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है? एशिया में। सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ASIA, एशिया। करेक्ट स्पेलिंग राइट कर ले और इसके बाद हाफ फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर ले, डबल अंडरलाइनिंग करेंगे आप लोग, मार्जिन, फिनिशिंग लाइन और नीट हैंड राइटिंग सब ने करनी है और हैंड राइटिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। फिर आप लोग देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को करवाया कि विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो हमने ग्लोब पे देखा था 5 ओशन से, ओशंस जो बस कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाटर वाला एरिया है उसको ओशन कहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा ओशन दुनिया में कौन सा है? सो आंसर हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप लोग राइट कर ले, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। PACIFIC, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। के दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। सबने राइट कर लिया और समझ आ रही है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ ले, कमेंट सेक्शन में राइट कर ले, लेकिन मिस्टेक कोई भी नहीं करनी। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस थी। इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लेसन नंबर 1 में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन फिनिश हो गए, तो इसलिए आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फुल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिर आप लोग नेक्स्ट पेज प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट पेज पे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे कि प्रॉपर मार्जिन लाइन हर एक पेज पे 1 फिंगर स्पेस के साथ प्रॉपर मार्जिन लाइन, डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। टॉप पे सीरियल नंबर, सोशल स्टडीज, CW और टुडेज डेट 6 मई 2021 नीटली राइट करके फिर फर्स्ट लाइन में आप लोग हेडिंग दे दें, टॉपिक इन कैपिटल। इन द नेक्स्ट लाइन राइट लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट लाइन में आप लोग राइट कर लें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था? व्हाट अ ग्लोब एंड अ मैप आर। ग्लोब और नक्शा क्या है एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, और उनमें क्या फर्क है। तो हमारा आंसर है ग्लोब। आंसर हेडिंग दे दे, उसके बाद आप लोग हेडिंग दे दे ग्लोब इन कैपिटल, राइट ग्लोब, GLOBE ग्लोब। उसके बाद
नेक्स्ट स्लाइड पे राइट कर ले, globe is a three-dimensional scale model of the earth. DIMENSIONAL, dimensional scale model of the earth. एक ग्लोब जो है ये एक अर्थ का एक मॉडल है जो कि शेप ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। सही है। फिर उसके बाद आप लोग मैप का हेडिंग दे रहे। मैप क्या है? वी हैव स्टडीड दैट मैप इज अ ड्राइंग, जो हम किसी भी सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी पेज पे या किसी भी चीज पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो राइट इट कैपिटल मैप, MAP, मैप। और मैप के साथ आप लोग राइट कर ले नेक्स्ट स्लाइड में, मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। ये क्या है कि ये एक ड्राइंग है, हम ड्रॉ करते हैं किसी जगह, किसी इलाके को दिखाने के लिए। मैप जो होता है ये सिटी का भी, स्ट्रीट का भी, घर का भी, हर एक जगह का हो सकता है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन 1। इसके बाद आप लोग हाफ फिनिशिंग लाइट ड्रॉ कर ले और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम कल 3 जो हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। और होमवर्क दोबारा नोट कर ले, सोशल स्टडीज होमवर्क फॉर टुडे इज लर्न शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लेसन 1। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट मेक अ ग्रिड ऑन अ मैप, कि मैप सॉरी ऑन अ ग्लोब। यहाँ पे आप लोग ग्लोब राइट कर ले कि ग्लोब पे ग्रिड के क्या चीज बनाते हैं हम। आप लोग अगर ग्लोब को करीब से देख ले तो उस पे आपको लाइंस का एक जाल नजर आएगा। सो आंसर है इसका मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो टॉप से लेके बॉटम तक जो लाइंस बनाई गई है उसको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो ईस्ट वेस्ट है उसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। इट मेक अ ग्रिड ऑन अ ग्लोब। ये स्पेलिंग समेत आप लोग अच्छी तरह से लर्न करके वो राइट कर लें। थैंक यू सो मच।